हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज जो वीडियो हम देखेंगे, रशियन मीडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि कुछ कमेंटर्स है जो ट्रोल करते हैं, लेकिन ट्रोल भी करो तो कुछ लॉजिक दे के करो। वो हर एक फॉरेन रिलेटेड कंटेंट में बस एक ही कमेंट चेप देते हैं कि अरे ये तो इंडियन ऑडियंस के लिए वीडियो बनाया गया है क्योंकि इंडियन व्यूज़ चाहिए उन्हें, और इंडियन ऑडियंस को टारगेट करके वीडियो बनाया गया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले तो इन वीडियोस के सारे टाइटल्स जो है वो रशियन में होते हैं, और ये वीडियोस भी पूरा का पूरा रशियन में होते हैं, उनमें कोई सबटाइटल्स नहीं रहता है। तो ये वीडियोस जो है वो सिर्फ और सिर्फ रशियन ऑडियंस के लिए बनाया गया है। इंडियन ऑडियंस का वहाँ पे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अगर मैं सबटाइटल्स डाल के आप तक ये वीडियोस ना पहुँचाता तो आप तक ये वीडियोस पहुँचते ही नहीं। और हो सकता है कि दूसरे जो फॉरेन ब्लॉगर्स है वगैरह है, वो उनका जो मेन ऑडियंस बेस है वो इंडियन है, तो वो इंडियन व्यूज़ पाने के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियोस है ये पूरा का पूरा ऑनेस्ट है, 100% ऑनेस्ट है, क्योंकि ये इंडियन ऑडियंस के लिए बने ही नहीं थे और ये रशियन ऑडियंस के लिए बने थे। तो ये कहना कि ये सारे वीडियोस इंडिया से व्यूज़ पाने के लिए बनाया गया है, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Как обернуть распространение коронавируса в свою пользу, знают в Индии. Страна намерена воспользоваться нестабильностью в мировой экономике и потеснить конкурентов. Наш собственный корреспондент в Индии Дмитрий Мельников посетил местные предприятия, чтобы узнать, какие ये отрасли वीडियो जब हुआ था готовы तब первыми इंडिया में вступить в कोरोना борьбу वायरस за फिर новые भी рынки сбыта. उतना फैला नहीं था। Вирус, как злой дух, сорвал все поставки. Фигурки богов и прочий религиозный инвентарь застряли в карантине. इंडियन भगवान भी चाइना से मंगवा रहे हैं, मतलब शेम ऑन अस रियली। Поставщиков, кроме Китая. Если вы спросите любого торговца, все ответят, что да, бизнес очень пострадал от ситуации с коронавирусом. Крупнейший в мире производитель лекарств Индия рискует остаться без сырья для своей фармацевтики. Еще одна отрасль в зоне риска — электроника. 80% компонентов смартфонов, включая микропроцессоры, тоже китайского производства. Но рынок не терпит пустоты. И то, что сперва казалось The катастрофой, show must go стало on. обретать иные очертания. Как и другие крупнейшие экономики, индийская сейчас также несет убытки. Однако для некоторых ее отраслей китайский коронавирус поистине шанс, который выпадает лишь раз в жизни. И первыми в выигрышном положении для себя неожиданно оказались индийские производители текстиля. Местные ткацкие фабрики начали получать заметно больше заказов со всего мира. С одной стороны, мы зависим от पूरे красителей दुनिया из से Китая. ऑर्डर मिल С रहा है। другой стороны, это возможность наладить производство сырья самим. Крупные бренды и производители одежды спешно ищут новых поставщиков. Тут-то их взоры и устремились на Индию. За последний месяц мы фиксируем огромный спрос на наши ткани. Сейчас эти объемы удвоились. Удовлетворить весь спрос на приостановленный китайский экспорт Индия сейчас, конечно, не в состоянии. Однако, оценив нынешнее положение вещей, промышленники обратились к правительству Индии за поддержкой. Правительство должно сделать немедленные шаги по наращиванию объемов производства. В долгосрочной перспективе у Индии есть возможность получить новые рынки сбыта. Для Индии это третья попытка обозначить свои претензии на второе место в гонке за звание мировой фабрики. Вспышки атипичной пневмонии, птичьего гриппа и сопутствующие им экономические встряски в прошлые годы были лишь намеком. Но Индия, похоже, эти намеки поняла правильно. Дмитрий Мельников и Владислав Додонов. Вести, Сурат, Нью-Дели, Индия. ये वीडियो इंडिया में कोरोना वायरस फैलने से जस्ट कुछ दिन पहले बनाया गया था, और रियली वी मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मिस तो नहीं कहूँगा, हाँ इफेक्ट ज़रूर हुआ है। अगर हम किसी तरह से कोरोना वायरस को इंडिया में फैलने नहीं देते तो ये हमारे लिए गोल्डन चांस था, क्योंकि सारे कंपनीज जो चाइना पे डिपेंडेंट है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश करते। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी था इंडिया के लिए ग्रो करने का, लेकिन कोरोना वायरस फैल गया और ये लॉकडाउन हो गए और कई सारे फैक्ट्रीज बंद हो गए। इट्स रियली वेरी डिसहार्टनिंग। अगर किसी तरह हम इस वायरस को इंडिया में फैलने से रोक पाते तो इंडियन इकोनॉमी का हुलिया ही बदल जाता। मैं इंडिया और रशिया का कंपैरिजन ना उन आलसी बच्चों के साथ करता हूँ जो बस नदी के किनारे बैठ के दूसरों को तैरते हुए देखते हैं, लेकिन उनमें उतना ही तैरने का पोटेंशियल है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उनको बस धक्का दे के पानी में उतारो तो वो पता नहीं कितनी नदियाँ पार कर देते तैर के, लेकिन बस वो बैठ के दूसरों को देखता है। इस देश ने स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट कर लिया है जो पहले अटेम्प्ट में ही मार्स पहुंच जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये टेक्नोलॉजीज़ इंडिया ने किसी देश से कॉपी किया हो। इंडिया ने यूनिकली अपने आप ये टेक्नोलॉजीज़ डेवलप किया है, जिसके चलते इतनी चीपली, इतनी कम खर्च में हम अंतरिक्ष में पहुंच पाए। तो ऐसा देश भला वेपन टेक्नोलॉजी में पीछे कैसे रह सकता है? मैं इसे आलसी कहूँगा और लैक ऑफ एम्बिशन कहूँगा।
या फिर यूँ कहूँगा कि इंडिया को बस बना बनाया वेपन्स मिल जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं और बना बनाया वेपन्स मिलते हैं, जिसके लिए वो स्ट्रेस नहीं देते कि खुद की टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए जो एक बूस्ट चाहिए, एक पुश चाहिए, वो पुश कहीं ना कहीं लैकिंग है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और दूसरे इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ये बात सच है, वरना चाइना से पीछे रहने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। और कुछ ऐसा ही मैं रशिया के लिए भी कह सकता हूँ, जो देश इतना वेपन टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा डेवलप्ड है, स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा डेवलप्ड है, वो भला दूसरे मैन्युफैक्चरिंग ऐसे इंडस्ट्रीज़ में पीछे कैसे रह सकता है। और इसकी वजह है, ये बात रशियंस खुद भी मानते हैं कि वेपन टेक्नोलॉजी और ऑयल और गैस आर ईजी मनी फॉर देम। तो इतना आसानी से जब पैसे मिल रहे हैं उनको, तो उन्होंने दूसरे सेक्टर्स में, दूसरे इंडस्ट्रीज़ में फोकस ही नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। देखिए, इंडिया के पास जब खुद का जीपीएस सिस्टम नहीं था और दूसरे देश से मिल नहीं रहा था, तो इंडिया ने खुद ही अपना जीपीएस सिस्टम बना लिया। तो इंडिया और रशिया बस ऐसे बच्चे हैं जिनको धकेल के बस पानी में उतारने की ज़रूरत है, और एक बार जब पानी में उतर गए तब वो कितना दूर तक तैर सकता है, ये हम सब जानते हैं कि हम में कितना पोटेंशियल है। ज़रूरत के वक्त मुश्किलों का हल और टैलेंट अपने आप निकल के आता है। तो चलिए, वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।